नमस्कार। इंडियन डेयरी एसोसिएशन की इस पॉडकास्ट सीरीज़ डेयरी डायरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस पॉडकास्ट की होस्ट मैं रिची अग्रवाल आज आपको लेकर आई हूँ अमूल डेयरी के सरदार पटेल सभागृह में। यहाँ पर हमारे साथ 3 फाउंडेशन पिलर्स हैं डेयरी इंडस्ट्री के, त्रिभुवन दास पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर कुरियन, और ये तीनों का ही आशीर्वाद हमारे साथ है आज की पॉडकास्ट के लिए। तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने 3 दशकों से भी ज़्यादा इस इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट किया है और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में शॉप फ्लोर से लेकर टॉप मोस्ट पोजीशन तक कैसे अमूल डेयरी को शेप किया है, कैसे अमूल डेयरी को ऑपरेट करना चाहिए, कैसे उसको अपना विजन बिल्ड करना चाहिए, उस पर काम किया है। उन्हें डेयरी इंडस्ट्री का डिजिटल मैन भी कहा जाता है। तो आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर अमित व्यास का। नमस्कार। बहुत स्वागत है सर। थैंक यू धन्यवाद। सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम टू स्पीक टू अस। इट इज Thank सच you. एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज फॉर मी to be speaking to you. Thank you very much and welcome to Amul would say and welcome to Anand, Thank you. place Thank of you. happiness. Of course. In fact, आनंद तो मेरा अल्मा मेटर है, मायका है मेरा, और आप मेरे सिर्फ इरमा के ही सीनियर नहीं हैं सर, मुझे पता चला आप हमारे पुणे यूनिवर्सिटी के भी सीनियर हैं। So it's a double right that I Yes, that own too, on sir. you. सर, पहले हम नंबर्स और सिस्टम्स की बात करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप अपने अर्ली ईयर्स को अगर देखते हैं तो हाउ डिड योर मेंटर्स, हु वर योर मेंटर्स एंड हाउ डिड दे शेप योर थॉट प्रोसेस, आपकी फिलॉसफी कैसे आपने बिल्ड करी है? So for that you need to go to 1974 when I was 4 years of age. अच्छा। And my father came and worked with Dr. Kurian in 1974. He is a veterinarian. So my entire childhood had been in NDDB, National Dairy Development Board. So only thing is that I was born in Ajmer in Rajasthan, but at the age of 4 years we shifted to Anand. So from there I was seeing my father moving from NDDB to Amul for the guest programs and working on Operation Flood 1, Operation Flood 2. Those days I was kid and I used to take tea for my father because I remember there were no calculators or nothing. You have to calculate everything and then do with pencil and then put it. So I've seen my father working from my childhood and working for the farmers. He used to go to Banaskantha, Sabarkantha, Gujarat, outside Gujarat, and every time coming and talking about the things that has happened. So it was well inoculated, you can say, from my childhood. The dairy was there in it. Later on, I happened to, I used to come here and play in Amul as a cricket captain of NDDB. I never thought that one day I would be sitting here where Dr. Kurian used to be. God has been kind, thank God. But the point was that thought of working for the farmers was always been discussed at home. And I remember 1985 when my sister, elder sister, she passed 12th examination, she got admission in engineering college, and Dr. Kurian asked my father that what your daughter Archana is doing. So he said she's going to become an engineer. So, see, Dr. Vyas, in dairy technology we don't have girls. Why she should not do dairy science? So my father had a word with my sister, and then she was admitted to Dairy Science College, and she did his dairy science from Anand, and that was a turnaround. I used to take her to college to drop her in those days and bring her back and wait, and I used to see her wearing white dress, salwar kameez, and for that practical programs. And so somewhere, the dairy was there in the mind. Father being veterinarian, sister being a dairy technologist, I've been an engineer. So, but yes, in earlier days, I started my career from a chemical plant. And to be very honest, in 92, 93, I was with Maradia Chemicals in Surendranagar. I happened to make HSCate plant, JFC, Tobias, Bond, sulfuric acid, nitric acid plants. And I started my career in project department only, though I'm an instrumentation engineer. So that was a learning phase for me. But every Sunday when I used to come back from Maradia Nagar back to Ahmedabad, where we used to stay, I used to bring my clothes. And my mother always, while getting the clothes cleaned up, she used to see red color coming out of it. So that was a chemical plant where I used to work, and that used to absorb in the cloth and then used to, you have. So my mother always talked to my father, "Isko kahan bhej diya hai? Ye chemical khata hai." So fortunately in those days, in 1993, there was a vacancy of deputy engineer in Banas Dairy.
and I applied for that. So I got a job. Then I thought that in those days my salary was very high in Maradia Chemical, and cooperatives were not giving good salaries. Correct. But then I thought also, had a word with my father and family and said, it's better to have a smell of butter and ghee rather than to have a smell of chemicals. So I shifted all the way from there. Beautiful. So that's where the journey started as a deputy engineer. From a project back to engineering, and in those days dairy automation was not there. I was the first instrumentation engineer being appointed in the dairy, where we all had mechanical engineer, chemical engineer, dairy science, electrical engineers, but no instrumentation engineer, because there was no instrumentation at all in that. Correct. So that's where we started working on putting of temperature sensors, controllers, and that's the journey where it all started off. Wow, it must have been so exciting, because I think lucky are those engineers जिन्हें engineering की चीजों पे काम करने का मौका मिलता है. I remember a case where there used to be earlier, electromechanical systems. And I was an instrumentation engineer. So if you want to control a process in a powder plant, the pressure transmitter, and then there used to be a tailor-made instrument which used to wobble like this. And it was very difficult to maintain. So we used to, in those days, there was a company who used to maintain those instruments. And they used to charge in those days, I remember in 93, 8,000 rupees per month. That was the charge being paid to those people. And and I was trying to learn, so they would not make you learn. Correct. So I said, I cannot work with these people because I don't know how to. So there was a flapper nozzle assembly, this and that. So I used to go back to the books and read, because I have never worked on that thing. Right. And then try to understand, learn the literature, but that person was expert of that, but I could not do anything. So I never had the hold on the plant in those days. So I said, why can't we replace this system with a digital system in those days? Wow. So I got on I found out pressure transmitter, this and that. And then there was a fight between these two, the contractor and me. I said, no, we should have this. He said, no, you don't know how to operate it. Obviously, because he was very powerful in those days. And then I said, no, we will have. So I put up the tender for first time for pressure transmitter and controller, and I was trying to control the valve and the first thing, and then a big fight, and then the matter reached to the managing director. Acha. And managing director, Mr. Saini, used to be there, and he said that, why this fight? And I said, sir, he's not making me learn, or either he's not making me give free hand to operate on this. Right. So he gave one statement. So I remember Dr. Saini said, Mr. Saini said, is the managing director, either Amit Vyas will stay or this Goel Services will stay. And I said, Amit Vyas will stay, he will not stay. Oh my God, this is mind-blowing. So I said that, and having said that, I said, but I did not know how to operate it. But then slowly and steadily we said, no, sir. So then he said, in 1 month, if nothing happened, Mr. Vyas, you will take care and we will remove this. That was a good decision taken by, I really appreciate Sahil Sahib, who trusted me on that. Wow. So in 1 month, the entire contract was been cancelled for the whole year, and we saved 1 lakh rupees in those days. Wow. And I then worked along with my team to set right the temperature controllers, the pressure transmitters, and then control valves. And that was the journey that started off, and then, that's the history. So starting from temperature sensor to pressure transmitter to temperature transmitters to controllers to control valves to PLCs to SCADA, and then the automation. Oh wow. Amazing, sir. This is very few people know about this journey. Now everybody will. Okay. So you began your journey as an instrumentation engineer, and you have हिंदी में कहे तो घाट घाट का पानी पी लिया आपने अब. तो आज की यंगस्टर्स को आप क्या बताना चाहेंगे जिनको एक्चुअली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होता है? कैसे उनको हम बता सकते हैं कि इस तरह की इतनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस अगर उनको उसमें काम करना है या लीड करना है, तो उनके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए? देखिए, कोई भी एम्प्लॉय को जीवन में एक चीज़ सीखनी चाहिए कि उसकी प्रोसेस पता होनी चाहिए. मतलब अगर मैं प्रोसेस कहता हूँ तो व्हाट्सएप आया तो किसको आता था चलाना, पर उसने सीखा कि बटन खोलो, जाओ, इसको अटैच करो, तो सीखा उसने, तो वो प्रोसेस को सीख गया. फिर उसके अंदर और डेप्थ में गया तो और ज़्यादा सीख गया, और डेप्थ में गया और ज़्यादा सीख गया. वैसे चाहे वो डेयरी हो, फर्टिलाइज़र हो, केमिकल हो, रबर हो, एल्यूमिनियम हो, पेट्रोकेमिकल हो, फार्मा हो,
द फर्स्ट थिंग फॉर एनी पर्सन, फिर आप उस सेक्शन में तो उसकी प्रोसेस को समझो कि क्या होता है। वजन काटे पे गाड़ी आती है, ये आती है, यहाँ जाती है, इधर खाली होती है, इधर क्वालिटी चेक होता है, क्वालिटी चेक के खाली प्रोसेस बनती है, प्रोसेस के पैरामीटर्स आते हैं, तो उसमें डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है, पर एटलीस्ट प्रोसेस को समझना। तो नई जनरेशन को अगर कहीं भी हमारे, ये मैंने कैसे सीखा, तो ये मेरे फादर ने मुझे सिखाया था कि जब ही वॉज ऑल्सो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वन ऑफ द डेयरी, एंड इवनिंग में हम बैठते थे तो कई बार हमें ज्ञान देते थे कि मैं पूछता पापा डेयरी में जाके आपने कैसे किया, आप तो वेटनेरियन हो, आप कैसे डेयरी चला रहे हो। तो आई यूज्ड टू आस्क माय फादर कि आप तो वेटनेरियन हो, मैं तो इंजीनियर हूँ, पर आपको कैसे मालूम कि इंजीनियरिंग में कैसे होता है। तो देन ही सेड कि हमें कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है तो सबसे पहले जिस डिपार्टमेंट में गए उसकी फाइलों को पढ़ो, खाली 10 दिन उसकी फाइलें देखो, पुरानी फाइल्स में क्या है, कैसे है, क्योंकि पहले ज़माने में फाइल्स होती थी, तो फाइल्स में पढ़ोगे तो पता चलेगा कि क्या उसका पैटर्न है। फिर उसके नीचे के लोगों से मिलो, उनसे मिल के समझो कि ये प्रोसेस कैसे चलाते हैं, और उसको समझने के बाद में फिर अपना खुद का इनपुट दो, पर पहले जो चल रहा है उसको समझो और उसमें ये पता करो इस प्रोसेस को अच्छा कैसे किया जा सकता है। सो दिस इज व्हाट ही मेड मी लर्न। ही ऑल्सो एक्सप्लेन मी कि हमें जब कभी तुम स्टोर डिपार्टमेंट रहोगे, किसी डिपार्टमेंट में तुम गए, तो नेवर ट्रस्ट द पीपल ऑन द फर्स्ट गो। अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो गो टू द ग्राउंड लेवल टू सी एंड अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। खुद काउंट करो, समझो, आप तो पहले प्रोसेस समझ जाओगे, बाद में आप उसका सिस्टम बना लोगे, तो फिर आप बैठे बैठे आप ऑफिस में देख सकते हो और यू कैन ट्रस्ट कि हाँ ये डेटा सही है कि नहीं। So for the new generation to understand and come in the system, they should know and understand the process. अगर प्रोसेस अंडरस्टैंड कर लिया फिर आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो उसके अंदर। अगर प्रोसेस अंडरस्टैंड नहीं किया आपने तो यू कैन नॉट, आपको समझ में नहीं आया शुरुआत कहाँ से करूँ। तो प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। तो नई जनरेशन को यही सीखना है, किसी भी डिपार्टमेंट चाहे फाइनेंस में आए तो उसकी प्रोसेस समझो, पेपर कहाँ से मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, कौन सर्टिफाई कर रहा है, कहाँ जाता है, उसका एंट्री कहाँ होती है, फाइलिंग कहाँ होती है, किस जगह पर रखा जाता है, मुझे जब पेपर चाहिए तो वापस कैसे निकलेगा। तो वो पूरी प्रोसेस को जब समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब होता क्या है कि हर प्रोसेस में एक आदमी एक्सपर्ट होता है। मतलब चेक बनाने वाला तो चेक ही बनाता रहता है, पर उसको ये पता होता है कि चेक बनाने के लिए पेपर कहाँ से आ रहे हैं, और मुझे देना किसको है, और वो अकाउंट्स में कहाँ जाता है, और अकाउंट से पेमेंट कैसे होता है, और फिर वो रिवर्स में आके चेक करके ब्लॉक करता है तो दूसरी बार पेमेंट तो नहीं हो रहा। तो वो अगर प्रोसेस को समझेगा तो चेक्स लग जाएंगे सिस्टम के अंदर। तो ऐसे ही फाइनेंस हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे फिर वो वेटनरी सर्विसेज हो, आप प्रोसेस समझिए। नई जनरेशन अगर प्रोसेस समझ गई, इट इज़ वेरी ईजी to come up in the organization, and you will become, you will grow up in the organization very fast. Wow, I mean this is so profound because layman terms में अगर मैं सोचती हूँ तो हम ये समझेंगे कि अगर उसको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो वो नहीं कर सकता है, उसको बहुत रगड़ना पड़ेगा, बट this made it so easy, sir. वेटनेरियन, मैं थोड़ी वेटनेरियन हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ, बट वी कुड डू लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन इन वेटनरी, बट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम द डॉक्टर्स की ये प्रोसेस होती है। मैं प्रोसेस को समझ रहा हूँ, एक प्रोसेस को मैंने समझा कि डॉक्टर को मैंने सिंपल पूछा कि ये ब्लड लेते हो आप, तो लेके क्या करते हो, बोला सर इसका हम स्मीयर बनाते हैं, इसको लेके और हम लेबोरेटरी में भेजते हैं। तो मैंने कहा लेबोरेटरी में भेज के टेस्टिंग करके फिर आप फार्मर को बताते हो, फिर आप ट्रीटमेंट करते हो। तो मैंने कहा यहाँ क्यों नहीं कर सकते, बोला सर नहीं, क्योंकि उधर माइक्रोस्कोप चाहिए। तो मैंने कहा माइक्रोस्कोप खरीद लो। तो बोला सर 300 माइक्रोस्कोप गाड़ी में नहीं रख सकते हैं। तो मैंने कहा सही बात है। तो मैंने कहा यार ऐसा कुछ समझो 300x माइक्रोस्कोप होता है, तो माइक्रोस्कोप ऐसा ले आओ मोबाइल के पीछे माइक्रोस्कोप बन जाए। बोला हाँ ये हो सकता है। फिर हमने ढूंढा करा तो हम उस पर काम करना शुरू किया। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि मुझे नहीं पता अब वो प्रोटोजोआ क्या होते हैं, कैसे मूव करते हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी प्रोसेस को कैसे सिंप्लीफाइड कि उस ट्रीटमेंट को हम जल्दी कैसे कर सकें। राइट, इफ यू अंडरस्टैंड दैट देन यू कैन हैव एन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। और आज तो डिजिटल वर्ल्ड है, आपको रोज एक नया प्रोडक्ट मिल जाता है सिस्टम के अंदर। आपको इसका एरिया नापना है, आपने यहाँ पे दिया, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, आपका एरिया मिल गया आपको। आपने हाइट लगा दी, आपको हाइट मिल गई। आपको इसके अंदर आप तो एआई आ गया, आपने बताओ कि मेरे को डिजाइन चाहिए, ये डिजाइन बन गया। तो टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हो आप। अमेजिंग, अमेजिंग। आई थिंक और ग्रोथ के लिए टेक्नोलॉजी इज द बेस्ट। तो यही हुआ, हमने जिस हिसाब से काम किया, हर 2 साल में प्रमोशन मिलते गए हमको, 2-2.5 साल में। Wow. So, of course, you have grown in the ladder pretty fast. We all can see that. पर आपको अमूल के MD के तौर पे 10 साल हो गए हैं, और ऐसे भी कोई डिसीजंस या डिसाइसिव लीडरशिप चॉइसेस आपको करनी पड़ी या आपने की, जिसकी वजह से ये जो हम देख रहे हैं कि 6,000 करोड़ से 15,000 करोड़ इन so many years, इट इज़ माइंड ब्लोइंग। आई थिंक हम लोग इमेजिन भी नहीं कर पाते थे 10 साल पहले कि ऐसा हो सकता है। तो ऐसी क्या इंटरवेंशंस किया आपने?
देखिए 2018 में जब मैं बना था, 8 साल हुए, तो 2018 में एमडी बना, तो सबसे पहले मैंने ये देखा क्या होता है कि जब मैंने जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट्स एंड इंजीनियरिंग में था, तो मुझे प्रोजेक्ट्स इंजीनियरिंग की सारी इन्फॉर्मेशन है, प्रोडक्शन मैंने काम किया से मुझे उसका आइडिया है, बट फाइनेंस में क्या होता है, एडमिन में क्या होता है, लीगल में क्या होता है, वो मुझे उसके पेपर मेरे पास भी नहीं आते, तो मुझे पता भी नहीं होता। तो व्हेन यू बिकम एमडी, तो 72 साल हुए थे, तो 73 साल अमूल को हुए थे, तो 6200 करोड़ पे हम पहुंचे थे। 6200 करोड़ का हमारा टर्नओवर था। तो सबसे पहला क्या है डेयरी इंडस्ट्री के लिए, मैंने रोज़ सवेरे पहले आके मैं पूछता दूध कितना आया। तो बोला कि सर वो मैडम को फ़ोन करना पड़ेगा, वो बताएंगी। तो वो डेटा आता था। सर एक एक्सेल की शीट आती थी इतनी बड़ी, उसमें यहाँ दूध इधर, ये दूध ये बालासिनोर में इतना है, फिर किसी को टोटल करना पड़ता था। तो मैं पूछता गुजरात के बाहर पे थोड़ा बहुत दूध कलेक्शन का कितना आता है, सर वो दोपहर को 3 बजे आएगा। तो शाम को पता चलता है दूध कितना आया। तो आपको पहले तो यही नहीं पता दूध कितना आ रहा है। Oh my God. तो And this is 10 years back. 10 years Not back very सब old. मैनुअल था ना, मैनुअल इंटरवेंशन था, तो डेटा मिलता था आपको, पर टाइमिंग जो था डेटा, Right, right. डेटा तो मिलेगा ही मिलेगा मॉर्निंग में, क्योंकि प्रोडक्शन में तो लिखा ही हुआ होता, पर हर जगह लिखा हुआ है, पर उसको कोई को कंपाइल करने के लिए आपको टीम चाहिए। Correct. और फिर उसके लिए एक एक्सेल शीट्स थी। अमूल में आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी एक्सेल शीट्स थी कि मतलब हर आदमी डेटा ही डाल रहा था। Oh my तो मैं बोला ये डेटा का ऑथेंटिसिटी क्या है। Correct. तो सैप में जो डेटा होता है, तो सैप से रिट्राइव करने का, सैप में कौन डालता है डेटा। तो मैंने आपको बोला कि प्रोसेस को समझने की जरूरत है। Right. देन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि पहले तो दूध कितना आता है उसका स्टैंडर्डाइज करो। तो फिर देन वी स्टार्टेड वर्किंग, उसकी स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की कि यहाँ से डेटा आएगा, यहाँ से आएगा, सवेरे एटलीस्ट मुझे मालूम तो पड़ जाए 9:30 बजे दूध कितना आ गया। तो देन दूध आने के बाद में सेकंड क्या चाहिए, कैटल फीड कितना बिका, क्योंकि फील्ड पे जा रहा है, उसका कंपाइलेशन किया। उसके बाद थर्ड फैट एसएनएफ कितना आ रहा है, जिसके ऊपर पूरा मास बैलेंसिंग चल रहा है, तो उसको हमने बैलेंस किया। Right. चौथा सारा दिन में सेल कितना हुआ, वो कंपाइल किया। तो एक सेगमेंट हुआ। दूसरा सेगमेंट की फील्ड पे कितनी विजिट्स आई, डॉक्टर ने कितनी गायें बीमार हुई, Correct. तो उसका डेटा था। कितना एआई हुआ, उसका डेटा। तो पता चला एआई का मैं डेटा पता करने के लिए गया, तो बोला सर 4-5 महीने पहले का डेटा मिलेगा। Oh my God. तो मैंने बोला कैसे, तो पता चला कि 5-6 लोग बैठे थे, उनके हर ऐसे 6 जन कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन थे। उनके पास सारे कागज रहते थे और वो डेटा पंच करते थे। अच्छा. तो उनके पास डेटा आ जाता था गांव से और फिर वो पंच करते थे, हर जन पंच करता था। 4-5 महीना पुराना डेटा पंच हो रहा होता। तो मैंने कहा तब तक तो बच्चा पैदा हो जाएगा 5 महीने 9 महीने में। तो सो देन वी सेड कि ये तो डेंजरस है। तो अभी जब आपको डेटा का बेस ही नहीं, तो पूरे इंडिया में ऐसा सिस्टम है कि कहीं पे आपको ये नहीं पता चलता एआई कितनी हुई, पेपर पे पता है पर फिजिकली कितनी हुई और कब उसका डेटा आया, दैट वाज अ बिग मिसिंग लिंक। तो हमको समझ में आया कि वी शुड वर्क ऑन दैट। तो 2019 में ही मैंने एक मीटिंग करी एआई की और मैंने कहा कि कैन वी मेक दिस डिजिटल। वेरी ऑनेस्टली एवरीबॉडी लाफ्ड एट मी एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। सब बोले नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट एंड एज यू नो द थिंग्स चेंज टोटली फ्रॉम ऑल पेपर वर्क। कोविड आ गया, देन वी मेड दैट एंड चैलेंज ऑब्वियसली पहला ही आंसर कभी भी इंडस्ट्री का होगा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एंड आई रिमेंबर हमने 10 महीने तक उसके ऊपर काम किया एआई को डिजिटल करने के लिए। 10 मंथ्स 11 मंथ्स द ओनली 3 villages एंड everybody came to me, the doctors, the IT department, the heads of the procurement. सर नहीं हो सकता ये, आप डिजिटल नहीं कर सकते, ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा। क्योंकि सर फार्मर के पास मोबाइल ही नहीं है, फार्मर को डिजिटल यूज ही नहीं करना आता है, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है, तो उसकी प्रोसेस समझो। अगेन कमिंग बैक टू दैट, तो पता चला कि हम उसको जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कौन सा नाम, कौन सा गांव, कहाँ रहते हो, कौन सा नंबर, हर बार मैं बोला थक जाएगा। एक बार डेटा बेस में है तो डेटा ले लो, उसको तो खाली 2 बटन दबाने दो, या डॉक्टर बुलाना है या एआई करनी है, बटन दबाओ, मैसेज चला जाए, हो जाए। एंड इन 10-11 मंथ्स ओनली 3 villages। जैसे उसको किया थोड़ा कंफर्टेबल हुआ, बढ़िया हुआ, इन 3 months 1200 villages। Wow. And there's no paperwork now. Oh my God. So This is once you understand the process, once you know what are the problem and think that as a customer, simple है, आप डिफरेंट बैंकिंग की एप्लीकेशन यूज़ करती हैं, डिफरेंट साइट्स पे आप एप्लीकेशंस डाउनलोड करती हैं, चाहे वो एयरलाइंस की हो, चाहे आप फूड की हो, चाहे जोमेटो की, किसी की भी करते हो। कौन सी एप्लीकेशन आपको सबसे अच्छी लगती है, जिसमें लाइफ सबसे कंफर्टेबल है कि 2 बटन दबाया, आपने सिलेक्ट किया, गो टू अमेजोन, आपने प्रोडक्ट डाला, ऑप्शन आए, आपने बाय किया, उसके ऊपर आया, अपना कार्ड पर आया, तीसरी बार 3 दिन में ऑर्डर आ जाएगा आपका। तो कितने स्टेप किया आपने, 3,
डिसीजन लिया, 3 स्टेप ही तो किया। करेक्ट, हाँ। सो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। यू नीड टू अंडरस्टैंड। उन्होंने कस्टमर को समझ लिया। सो एवरीवन ट्राइज टू अंडरस्टैंड द कस्टमर। वंस यू अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड, फिर वो आपका इंटरनल कस्टमर क्यों ना हो, इफ यू मेक इट सिंपल, हिज लाइफ बिकम्स कंफर्टेबल एंड देन ही गेट्स शिफ्टेड, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में आ गया। पहले की और उसको मैं दोनों में कंपेयर करता है तो सोचता है कि नहीं, पहले तो उसको उतने कागज भरने पड़ते थे। अब वो कुछ नहीं पढ़ना। तो मेरे को याद है कि जब एक गांव में एक एआई वर्कर 9 से 10 किताबें भरता था। अब एक की एक किताब तो रखता नहीं था, एक की 10 किताब रखता था। तो आप सोचिए, ऐसे एक जन 10 एक के 10 रखता था और 10 भरता था। ऐसे 1200 गांव हैं। ये तो खाली खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो यू कैन इमेजिन हाउ मेनी पेपर्स, और उसका टाइम भी वेस्ट होता और है। उसका टाइम। और हमने जब ये डिजिटल किया तो आप सोचिए, मैंने एक ऑफिस ऑर्डर निकाल के उनको बोला था कि नोबडी विल यूज पेपर, विल नॉट एक्सेप्ट एनी पेपर, एंड दे वर सो हैप्पी कि सर अभी तो हमको मैसेज में मालूम पड़ता है मुझे कहाँ जाना है, कौन सा लेट लॉन्ग है, कितने बजे पहुंचना है। अगर वो नहीं पहुंचते तो हमारा कॉल सेंटर उसको कॉल कर देता है। सो दिस इज व्हाट द लर्निंग इज। सो यू अंडरस्टैंड दैट। तो हमने एआई का जब बनाया प्रोग्राम तो वेरी इंटरेस्टिंग, आप बोलते हैं चैलेंज। तो ये सब बन तो गया, बड़े खुश हो गए। अच्छा। तो पहले कॉल सेंटर 2013 में हमने बनाया था कि फार्मर को प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को बुलाने के लिए यूज कर सकता है कॉल करके। राइट। तो हमने बोला एआई भी ऐसे करेंगे। तो मैं भी आ गया कि हाँ एआई भी ऐसे ही करेंगे। तो हमारे एआई सब बोले सर दिन की 3000 एआई होती हैं, तो 3000 कॉल आएंगे, तो उसके लिए कॉल सेंटर बढ़ाना पड़ेगा। तो आदमी क्या होता है, जब फ्लो में होता है, सक्सेस आती है तो आप कहाँ बना दो। तो मैंने बना दिया। तो मेरे पास आया कि सर अपने को तो 70 आदमी चाहिए। मैं बोला क्यों? तो बोले 70 आदमी रखेंगे ना तो ये 30-40 तो हैं और 70, तो 110 आदमी कॉल पे रहेंगे तब ये डेटा पूरा कंप्लीट हो पाएगा। अच्छा। अरे मैंने बोला ये तो डिजिटल करने से ज्यादा है, मैन पावर का प्रॉब्लम हो गया। सो आई सेड कि नहीं, इतने तो मैं नहीं दूंगा। तो मैंने 20 तो दिए। 50 करने के बाद 30 पहले थे, 20 दिए, 50 हुए। फिर मैंने होल्ड कर दिया। मैंने कहा नो, वी हैव टू गो रिवर्स। और हमने बोला फार्मर को डिजिटल बनाओ। बोला सर ये तो हो ही नहीं सकता, उनके पास मोबाइल ही नहीं है, एआई कैसे डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन? किसी के पास में एंड्रॉइड है, किसी के पास में आईओएस सिस्टम है, हाउ दे विल डू इट? आई सेड नहीं, लेट अस डू इट। टू बी सरप्राइज्ड, वी हैव ओनली 7 पीपल नाउ इन कॉल सेंटर एंड आई एम गोइंग टू क्लोज इट वेरी सून। 1 या 2 आदमी रखेंगे, बाकी डिजिटल एप्लीकेशन फार्मर को ट्रेन कर दिया हमने। हमारी टीम, डॉक्टर प्रीति एंड ऑल, एवरीबॉडी वर्कड वेरी हार्ड। दे वेंट टू विलेजेस, या हमारे वेटनरी डॉक्टर्स गए, समझाया, उनकी लाइफ कंफर्टेबल हुई तो उन्होंने यूज़ करना चालू कर दिया। तो आप जैसे सिंप्लीफाई करते जाओगे सिस्टम में लोग आते जाएंगे, पर उसकी प्रोसेस को समझते जाओगे और इजी होता जाएगा। वाओ। तो ऐसे कोई टफ डिसीजंस आपको लेने पड़े जिससे कि आपको मुश्किल का सामना करना पड़ा, ऐसी कोई? डिसीजंस हमेशा मुश्किल ही होते हैं। Oh. आई ऑलवेज बिलीव डिसीजन ये सोच के लेते हैं अपन कि ये सक्सेस होगा, पर उस पर अगर होमवर्क नहीं किया तो सक्सेस नहीं होगा। राइट। अगर होमवर्क अच्छा किया, उसकी प्लानिंग अच्छी की, वी हैव टू लर्न फ्रॉम जापानीज पीपल दैट इफ दे वांट टू डू एनीथिंग दे स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग। बातें सब करते हैं पर अगर अपन खुद इंप्लीमेंट नहीं करते तो वी सेड कि नहीं, कोई भी काम करना है तो उसका प्लानिंग परफेक्ट करो। एंड दैट इज व्हाट आई टोल्ड माय टीम इन एपेक्स दैट वी शुड प्लान टू परफेक्शन। सबसे बड़ा चैलेंज जॉब था कि गाँव में जो सोसाइटीज़ हैं उसमें आज भी पुराने ज़माने की हैंडल की मशीन चलती थी जो फैट एसएनएफ को चेक करती थी। तो टेक्नोलॉजी चेंज हुई। सो आई वॉज इन सूरत इन दोज डेज एंड हमने सोचा कि इसको डिजिटल करके और डेटा अपने सिस्टम में 2005 में मैंने ऐसा सोचा कि ये डेटा अपने सेंटर पे आ जाए। पहले डेटा लिख के आता था, फिर वो डोंगल आया, उसमें डोंगल में ट्रांसफ़र होके आता था, फिर उसको ट्रांसफ़र एक्सेल में करते, डाउनलोड करते थे, तो वो करते थे। तो हमने 2005 में, मैंने 6 में सबसे पहले सुमुल डेयरी में इंडिया का डेयरी सेक्टर का पहला टावर लगाया था, जिससे बाजेपुरा सेंटर से डेटा, उस 10-20 गांव का डेटा वो सेंटर पे आया और वहाँ से सीधा हमारे सेंटर पे सुमुल डेयरी में टावर खड़ा किया था और वो डेटा डाउनलोड किया था मैंने 2007 में, 2006 में, जब किसी ने सोचा नहीं था। 2006-07 में हमने ये सोचा था कि क्योंकि मुझे सेल्स दिया गया था वहाँ पे कि एक असाइनमेंट के चेयरमैन ने बोला कि वहाँ सेल्स घट रहा था, तो बोला अमित को दो, इरमा पढ़ा हुआ है, इसको दो ये कुछ करेगा। सो आई वाज जनरल मैनेजर टेक्निकल, तो सेल्स दिया था, तो वहाँ सेल्स डाउन हुआ था। तो हमने उस समय सेल्स की रोज के, मतलब मैं देखता था, मैं सेल्स के ऑफिस में बैठता था तो कम से कम 100 लोग आते थे। आज मेरा एंट्री गलत मार दी, आज ये दूध पोटला गलत दे, दूध पोटला बोलते हैं दूध को वहाँ, थैली को, ये 6 लीटर की जगह 5 लीटर दे दिया या 1 लीटर दे दिया, इतने सारे प्रॉब्लम और आप पागल हो जाओ।
इतना प्रॉब्लम है, इसको डिजिटल नहीं कर सकते। तो बोले सर ऐसा कैसे करेंगे। तो उस जमाने में मैंने डिजिटल सॉफ्टवेयर डेवलप किया था और सुमुल को 2006-7 में 8 में हमारा पूरा प्रोग्राम डिजिटल हो गया था। और सेल्स प्रोग्राम को जो डायरेक्टली उस समय के अंदर 2900 रुपये में मैंने, नहीं 2010 की बात है, सॉरी 2010 की बात है, 2010 में हमने उसको मोबाइल दे दिए थे, बोर्ड में अप्रूव करा के 2900 मोबाइल दिए थे उस जमाने में हमने एजेंट्स को, और वो उसमें डेटा डालते थे, हमारे सिस्टम पे आता था। तो जब ये टावर खड़े किए थे, जस्ट आई एम सेइंग कि वो टावर खड़े किए तो डेटा आना जब हुआ तो उसके लिए कंसेप्ट कहाँ से आया। तो मलप्पुरम एक जगह है साउथ में, केरला में, तो पता चला कि ट्यूलिप करके कंपनी है, उसने एक गांव को डिजिटल किया है कि वहां पे एजुकेशन हब जो था उसको थ्रू नेटवर्क ट्रेनिंग देते थे। दैट वाज द फर्स्ट वर्क डन बाय ट्यूलिप इन 2005-6 में, जब टेक्नोलॉजी की कोई बात नहीं करता था, एरिक्सन हुआ करता था उस समय। तो मैंने बोला कि वी शुड गो एंड सी, तो मैं गया था वहाँ पे, आई वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड। तो हमने ऐसा अपना 7 लाख रुपए का टावर खड़ा किया था। तो मुझे चेयरमैन उस समय बोर्ड ने बोला था, क्योंकि मैं तब जनरल मैनेजर था, तो बोला मैं ये खर्चा करेंगे क्या फ़ायदा होगा। तो मैंने बोला सर इस टावर पे हम, उस समय आइडिया था उसका टावर के अंदर वो लगा देंगे ताकि उससे पैसा चार्ज करेंगे। तो हमने उस समय वोडाफोन तो नहीं, तो दूसरी 2-3 और भी थी, यूनिवेल्ट कर क्या था, एक और कंपनी थी जो उनके, उन सब के टावर के वो जो रेडार होते थे वो हमने लगा दिए थे, उससे रेंट लेते थे हम। तो हमने उसको रिकवर करना चालू किया और डेटा हमने ट्रांसफर करना चालू किया। तो दैट वॉज अ बिग चैलेंज, बट वी स्टार्टेड। बट बाय द टाइम आई केम हियर, तो 2018 में यहाँ पे अभी भी सोसाइटीज़ में वही सिस्टम चल रहा था, मैनुअल सिस्टम। तो हमने बोला कि इन मशीनों को चेंज किया जाए। तो हमने वहाँ से क्योंकि मैं डेनमार्क गया था, वहाँ पे टेक्नोलॉजी देखी थी, एक एक मशीन 3 लाख रुपए का था। अच्छा। अगर आपको ऐसी 5000 मशीन लगानी है तो यू डोंट हैव 150 करोड़ रुपीज़ टू स्पेंड इन वन गो। सो हमने कंपनीज को बुलाया, मैंने डिस्कस किया कि लेट अस इंडिजिनाइज दिस, और आपकी सरप्राइज के लिए हमने इंडिजिनियस डेवलपमेंट करके उसको 30,000 रुपये में ला दिया। ओह माय गॉड। और 30,000 ला के फिर उस मशीन को लगाने की जब बात हुई तो मेरे सोसाइटी के हेड ने बोल दिया कि सर ये नहीं हो सकता, क्योंकि गांव में आग लग जाएगी, और अभी वो जो हैंडल से चलाते हैं वही डेटा सही है, और वो कैलिब्रेशन को मैनिपुलेट भी कर सकता था। Correct. और करते थे भी थे थोड़ा बहुत। तो वो एक चैलेंज था हमारे लिए। तो आई रिमेंबर इन वन ऑफ द मीटिंग मैं 8 महीने तक बोल बोल के थक गया, पर ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। बट देन आई यूज माई वीटो बाय सेइंग कि नहीं, आई विल चेंज द एंटायर गांव। तो पहले हमने 20 गांव लिए जिसको हमने मशीन लगाई। अभी तो खाली लगाई थी तो हमारे चेयरमैन तक लोग आ गए और बातें हो गई कि ये सब गलत कर दिया अमूल ने, ये क्या कर दिया, वो हो गया, बहुत डिस्कशन हुआ। बट आई रिस्पेक्ट माई चेयरमैन, अर्लियर चेयरमैन, एंड द एंटायर बोर्ड एंड द प्रेजेंट बोर्ड एंड द चेयरमैन हु एक्सेप्टेड इट कि नहीं, चैलेंज आ रहा है ना भाई, करो, चैलेंज है, कोई प्रॉब्लम नहीं, करते हैं। आप सोचिए पूरे गांव के लोग आने लग गए कि ये मशीन गलत है, फलाना है। नोबडी कुड मैनिपुलेट दिस मशीन नाउ। तो कम से कम हमने उसको 6 महीने चलाया, समझा, प्रॉब्लम सॉल्व किए, और आज आपको सरप्राइज होगा, केरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज 5000 मशीन्स लगी हैं, और आउट ऑफ गुजरात भी सारी मशीन्स लगी हैं। डेटा डायरेक्टली सर्वर पे आता है, और उस डेटा से पेमेंट भी उसी के बेस पे डायरेक्टली फार्मर को होता है। तो चैलेंज बहुत बड़ा था सोसाइटी में, एनीथिंग विलेज में कोई भी चेंज करना। तो जब ये सिस्टम हुआ, डिजिटल हुआ, तो सोसाइटीज़ को हमारे यहाँ पे प्रिंट आउट निकलता था, कितना फैट SNF आया। एक डिपार्टमेंट था हमारा, आप समझ लीजिए जितने अपन एरिया में बैठे हैं उतने अंदर रैक्स हैं, उस रैक्स के अंदर हर रोज़ प्रिंट आउट दोनों टाइम का निकाल के और टैंकर वाले को भेजने का, और वो गाँव में दे के आता था। तो हमने ये भी चेंज किया, तो सब आग लग गई कि अमूल ने डेटा देना बंद कर दिया, बंद कर दिया। हमने बोला आपको सर्वर पे दिख रहा है, आपका डेटा सिस्टम पे दिखता है। तो धीरे 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 आज देखिए entire Amul village level cooperative societies are 100% in line with Amul Dairy, and my next target is to ensure that like Amul we don't have any paperwork, society should also not have any paper in next 1 to 2 years. जो भी थोड़ा बहुत यूज कर रहे हैं वो भी हमको खत्म करना है, पर अमूल के साथ जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो हमने पेपरलेस कर दिया। तो challenges would come, you have to accept it, you have to understand it, you have to change it, because I am an instrumentation engineer. मैं always समझता हूँ प्रोसेस, सेट पॉइंट ये है, प्रोसेस है, प्रोसेस में डेविएशन आया, कंपनसेट करो, उसको ठीक करो, एंड गो बैक टू द फीडबैक लूप, और फीडबैक से उसको सेट करके वापस उसको ठीक करो, फिर वो सेट होगी, क्योंकि सेट पॉइंट को चेंज कर रहे हो आप। तो सेट पॉइंट चेंज होता है, तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ सेट पॉइंट, प्रोसेस वेरिएबल एंड कंट्रोल and the feedback loop. Right. This is what I have worked in last 36 years. Oh my God. And it looks like that I have come back to engineering days. बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। So which means that if something is not working,
we go back with the feedback loop, Feedback. check and recalibrate and see. recalibrate and accept it. हमारे यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हम उस चीज को मानते नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर एक फार्मर भी बोल रहा है ना तो एक्सेप्ट करो। आप ये मत मान के चलो कि आपने जो किया वो बेस्ट है। उसके पर्सपेक्टिव में देखो, इफ यू आर सिटिंग ऑन दैट साइड ऑफ टेबल, आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, और जिस दिन आपने समझ लिया, यू कैन टर्न अराउंड। आई विल गिव एन एग्जांपल स्टोरी इफ यू एग्री। मैं सूरत में था, तो सुमुल डेयरी के अंदर वहाँ पे ऑपरेटर्स मशीन, क्योंकि वहाँ दूध ज़्यादा पैक होता है, तो मैं ज्वाइन किया 2002 में। तो मुझे वहाँ के एमडी ने बुलाया, सब बोला कि हमें ये मशीन बराबर नहीं चलती हैं, पैकिंग बराबर नहीं होता है, टाइम पे पैकिंग नहीं हो पाता। जो दूध का सेल था, 3-4 लाख लीटर सेल होता है, तो वहाँ पूरा मोनोपोलिस्टिक अप्रोच जो था ऑपरेटर्स का था। जो एमडी को ऑपरेटर्स कह दे वो ब्रह्म वाक्य होते थे। इंजीनियर्स वुड नॉट कंसिडर, मैनेजर वुड नॉट कंसिडर, क्योंकि वो ही बताते थे कि यही गलती है, इंजीनियर काम नहीं करता, तो मान लेता था मैनेजमेंट, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा। तो मुझे बोला गया, तो मैंने भी देखा, तो पहली 2 मीटिंग में तो जो 2-3 बोले, तो मैंने कहा यार ये कैसे बोल रहा है कि इंजीनियर को नहीं समझ में आता है। तो बड़ा मेरे को लगा, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो हमारे एमडी साहब थे, तो उन्होंने बोला अमित जाके देखो। तो मैं उनके साथ रहा। मैंने उनसे एक ही बात कही कि आप अपने सारे पॉइंट्स लिख दो, कितने प्रॉब्लम है। उन्होंने मुझे याद है कम से कम 10 पन्ने भर के पॉइंट्स बताए, लिख के, ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं, ये नहीं, ये नहीं, छोटे छोटे पॉइंट, मतलब छोटे छोटे पॉइंट। मैंने ठीक है, अपनी टीम को लगाया, मैंने चल जितने निकलते हैं सॉल्व कर। कुछ ऐसे थे कि जो स्ट्रेटेजिक थे, तो हमने साहब को बोला कि सर ये चेंज करना चाहिए, तो उन्होंने बोला ठीक है अमित करो। तो वॉल्स वगैरह बदलने थे, बदल दिए, रिंग्स बदल दी, मॉडिफाई कर दिया। आदमी सीढ़ी चाहिए थी, ऊपर चढ़ने के लिए चाहिए, सब कुछ कर दिया। 3 से 4 महीने मैंने उनके जो 13 पन्ने, जो 15 जितने भी पन्ने उन्होंने दिए थे, सारे पॉइंट्स खत्म कर दिए। मतलब अब बोलो, तो दे स्टार्टेड लाइकिंग मी, यार ये साहब बढ़िया है, ये तो सब कर देते हैं अपना। तो अब उनके पास खत्म हो गए पॉइंट्स। तो एमडी की मीटिंग में बोलो अब बताओ क्या पॉइंट्स है। ना सर बहुत सारू चाल है, बहुत बढ़िया चलता है। तो हमने कहा बहुत बढ़िया चलता है, तो क्या करना है बताओ। दैट्स द टाइम वेयर यू पुट योर इनपुट्स, बिकॉज देयर थिंकिंग हैज गॉन ब्लैंक। Whatever experience they had, they have reached one level. Now you are an engineer, as a general manager, put your thoughts to it and they will implement it. Amazing. And they started implementing it. It was a turnaround for the entire organization. My God. So understanding the process, solving the problem of the ground level person, accepting the problem. If there is a mistake, you rectify it. If you are not a decision maker, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें डिसीजन मेकर का आता है। Correct, हाँ. Your job is to go and tell the management, even if you are at the ground level, कि सर ये करने से ये फायदा होगा। No management will say no, अगर उसको उसमें दिखेगा अच्छा। तो आप अगर हम गए, हमने बताया, उसको चेंज किया, you can see that things have turned. Sumul is now 17 lakhs, 18 lakh liters of milk, growing good. So it happens. Yeah. और at this stage of your journey, how do you personally define success? What does success mean to you? Success has to be forgotten fast. It's the concept. My God. You cannot sit on success. Success आई, भूलो, आगे चलो। ताली बज गई, सबने वाह वाह कर ली, उसको सिंक मत होने दो बॉडी में। जैसे ही बॉडी में सिंक होंगे, अहंकार बढ़ जाएगा आपका, दैट यू आर समथिंग, कि मैंने किया। आपने नहीं किया था, पहले तो ऊपर वाले ने करवाया, आपको निमित्त बनाया, और आपकी टीम ने मिलकर काम किया। तो सक्सेस आपकी नहीं है, वो पूरी टीम की है, सबसे पहला पॉइंट। और उसको डेडिकेट, फर्स्ट गिव सक्सेस टू गॉड, क्योंकि उसने करवाया था, तो मतलब समर्पित कर दो कि सक्सेस उसका है। दूसरा, समर्पित कर दो अपनी टीम को, जो आपके साथ काम कर रहे हैं। और फिर जब उसको एंजॉय करने दो, और उसको भी बोलो कि एंजॉय कर लिया तो उसको भूल जा, और आगे की तरफ कैसे बढ़ना है वो देख। So success has to be forgotten fast. It should not sink inside your body in the first place. Then you will. So I don't consider. I said this was the milestone. I don't consider it success. Achieved and next. Achieve what is next. तो सेट पॉइंट को बढ़ाना है आपको अपना। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर की भाषा में सेट पॉइंट को ऊंचा कर लो आप। तो जैसे सेट पॉइंट ऊंचा किया, तो आपके नए चैलेंजेस चालू हो जाएंगे। क्योंकि जब आप अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो, तो सेट पॉइंट 1 में भी बढ़ता है ना, तो उसकी कंट्रोलिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। करेक्ट। तो यू हैव टू थिंक, उतना ही एफर्ट वापस डालना पड़ता है। उससे 10 टाइम्स ज़्यादा डालोगे तब वो पॉइंट 1 सेट होगा। करेक्ट। इट्स लाइक जब हम पढ़ते थे तो बोलते थे कि 80% मार्क्स लाना तो बहुत आसान है, थोड़ा पढ़ लिया तो आ जाएगा। विद एवरी 1 मार्क एडिशन यू हैव टू वर्क दैट मच हार्ड। तो इसके लिए तो सक्सेस के ऊपर बैंग मत करिए आप कभी भी, और एंजॉय करिए उसको, फील करिए, और उससे सीखिए, और लोगों को गाइड करिए। जो सक्सेस आपकी मिली है उसको पकड़ के मत बैठिए, और उसके आगे के पॉइंट पे चैलेंज को एक्सेप्ट करिए कि अरे ये सक्सेस हो गई, चलो और क्या चाहिए हमें, उसके ऊपर काम करिए। एंड एक्सेप्ट,
I'll give you कि सक्सेस मिल गई, हम लोग अमूल में भी आए, काफ़ी काम किया. I remember Rahul Kumar was, Sabji was the MD, and myself, Dr. Ratnam, Dr. H.K. Desai was sitting, and he was as MD. He said, you three are general manager. I was general manager project engineering. Dr. Ratnam was general manager operations, and Dr. H.K. Desai was general production. बोला मुझे तीन को हमको बोला कि तीन को मुझे एक प्लांट देना है. हर कोई एक प्लांट हो ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस प्लांट की, चाहे वो सेल्स करना है, उसको चलाना है, सब कुछ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो सबने पूछा क्या क्या लेना है, तो मुझे बोला यू टेक कैटल फीड. अच्छा. बाकी रत्नम बोला तेरे को डेयरी नहीं दे सकता क्योंकि डेयरी में डॉक्टर रत्नम इज ऑलरेडी देयर. एंड देन ही सेड डॉक्टर एच के देसाई को इज एक्सपर्ट ऑन चीज, R&D अच्छा किया, तो ही लेट हिम बी विद दैट. तो बोले यू टेक कैटल फीड. आई सेड नो सर. कैटल फीड बोला यू डिड लॉट ऑफ वर्क इन सुमुल. आई सेड नो सर. बोले आई सेड आई वांट मोगर. ही सेड मोगर इज 40 करोड़ बिजनेस, दिस इज 400 करोड़ बिजनेस. तो मैं सेड सर मुझे 40 करोड़ वाला बिजनेस करना है, देखना है. बोले क्यों? मैंने कहा सर मुझे कुछ नहीं आता उसमें, इसलिए. आई नेवर न्यू चॉकलेट, आई नेवर न्यू बेकरी, आई नेवर न्यू माल्ट, आई नेवर न्यू रेडी टू थेरेपेटिक फूड, नेवर न्यू केचप, नेवर न्यू मायोनीज, नेवर न्यू फ्रोजन प्रोडक्ट्स. कुछ नहीं आता मेरे को. THR कुछ नहीं आता था क्योंकि कहीं था ही नहीं ऐसे प्लांट डेयरी सेक्टर में. तो हमने बोला सर ये दे दो मेरे को. तो बोला इससे क्या करेंगे. I so much resonate with this because जब मैंने अमूल ज्वाइन किया था फेडरेशन, तो पहले दिन वो चिट्ठी मिल गई थी कि यू आर DIC चॉकलेट. तो अभी ये चॉकलेट में बेचना क्या है, करना क्या है, नो आइडिया, बट इट वाज सो मच फन. यस, सो इट इज लाइक दैट द थिंग व्हिच यू डोंट नो. मुझे आज भी याद है कि मैं खाली प्लांट में पटोडिया के साथ में जाके घूमता था. मैंने पटोडिया समझाना, ये सर यहाँ पे डालते हैं चॉकलेट, यहाँ पे ऐसे बनती है, इसका ये है, इसमें ये बोलता है, इसमें से ये निकाल. मैं 10 बार गया हूँ तब समझ में नहीं आया मेरे को, पर मैं प्रोसेस ही समझ, हर बार जाके प्रोसेस समझता था. फिर समझ में, अच्छा ये अरे यहाँ पे होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है. तो प्रोसेस समझ में आ गई. वी मेड वर्ल्ड का बेस्ट प्लांट लगा दिया हमने विदाउट एनी कंसल्टेंट. समझ लिया प्रोसेस विदाउट एनी कंसल्टेंट. ओह गॉड. खुद ही ने डिजाइन कर लिया. यू आर रियली किलिंग द लाइवलीहुड्स ऑफ मेनी पीपल. But it's benefit for the farmers. You don't spend money. Use your brain. Correct. Use your team efforts. Use your knowledge. And कहीं भी जाओ तो सीखने की प्रवृत्ति रखो. तो हमने वर्ल्ड के सारे प्लांट्स देखे. I was fortunate enough, my earlier MDs and my chairman, they asked me to go to look at the plants, understood the technology, understood our people, and then gel it together to get the world, make world best plant. Amazing. ये वर्ल्ड की बात की सर आपने, तो I want to ask about Amul's global success. We have been really working on going out of India, and Spain is one of the examples that we have recently managed to achieve. Correct. And I think there have been more countries, including US, that we have worked on. उनके बारे में और कैसे, how did you think that we can do that? देखिए 2012 में हमने स्टार्ट किया था. आई रिमेंबर राहुल कुमार साहब और हम गए थे, एंड वी हैड अ मीटिंग. वी स्टार्टेड डिजाइनिंग द प्लांट. वी हैड वन प्लांट इन वाटरलू. स्टार्ट किया था. इट वाज वेरी टफ बिकॉज वहाँ का प्रोडक्शन का, वहाँ का प्रोडक्ट देना, अपने टेस्ट जैसा बनाना, अपने कस्टमर को देना, इट वाज नॉट ईजी. इट वाज नॉट ईजी. लेटर ऑन 2015-16 में हम लोग थोड़ा बहुत शुरू किया, एंड द थर्ड पार्टी ऑपरेशन वेंट फॉर अ डॉक. समबडी टुक ओवर दैट प्लांट, एंड then COVID came in. Then again we went for working on starting of ghee, श्रीखंड, पनीर, एंड वी स्टार्टेड वर्किंग. एंड बहुत टाइम तक कुछ नहीं हो पाया. एंड फिर कोविड आ गया. फिर हम जाके आए, वापस आए, कोविड आ गया, उनकी टीम भी आई, ऑलमोस्ट फाइनलाइज स्टेज में था, फिर नहीं हुआ. Then Jain Bhai took over, and Jain Bhai was of the different opinion, and I really appreciate his thinking. And he said, Amit, we should go for milk. At one time I said, milk में कैसे जाएंगे? So then I realized कि his thinking was correct. Then let's go with a high-fat milk. So हमको लगा. Then he started working. We along with our team, and we started. They did survey. Federation did survey. तो हमने US मार्केट में फर्स्ट टाइम 6% फैट का मिल्क लॉन्च किया with through Federation. It is turn around now. This year we'll be crossing more than 100 crores of business from US. Oh my God. In last 2 years, if you see that things have sea changed, and people have started thinking, okay, milk can be sold like this also. So that prompted us to go to Spain. Absolutely. That prompted us to go to Spain. We started working on Spain, and later on, lot more countries to come. So Yes. dairy to the world is now Amul. Absolutely. और आपके साथ एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे मैं भी काम करूंगी. Yeah, sure. Most welcome. Most welcome. We should do something. First we need to understand, as I said, the process को समझो, वहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट को समझो, फिर उसके टेस्ट का प्रोडक्ट बनाओ. अपने टेस्ट मत दो. उसका टेस्ट क्या है? अमूल इज व्हाट?
Amul is the taste of India. Correct. It's what you eat, what you like, what I like, what he likes, or the other person likes. It's the same taste, and that's where we don't spend money in R&D and all. You know, so much of money in surveying what exactly customer wants. Correct. क्योंकि जो टेस्ट आपको पसंद आ गया वो आपकी वाइफ को आना ही है, आपके बच्चों को आना ही है. Correct. प्लस माइनस थोड़ा हो सकता है, बट टेस्ट वो रहता है. Correct. इंडियन टेस्ट आपको उसका टेस्ट समझ के प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए. अमेजिंग. एंड इवन रिसेंटली मुझे कोई बता रहा था कि यूएस में पर्टिकुलरली वेस्टर्न कंट्रीज में तो काउज ही होते हैं, तो 3.5, 4, 4.5 मैक्स इज व्हाट वी आर लुकिंग एट. That's our recipe. Golden recipe. We'll not go to that. All But right. yes, we made it to 6%, and people are liking. We Correct. never thought Costco was the one brand, Correct. basically the chain who had come here, and now we are in all the states of US, which no other product in that country is like that. Amul is one of Right, them. So right. it's a big achievement for us, and we good thanks Absolutely. to Jayan Bhai and the entire team from GCMF Amul team. Thanks to our board and their board, and everybody has accepted that. Absolutely. Leadership का role has been critical in doing this. Absolutely wonderful. तो how is your vision for future now? इतना कुछ तो कर लिया है सर, अभी और कुछ भी बचा है क्या करने के लिए? I love ad of Pepsi. ये उसका है ना, ये दिल मांगे मोर. अच्छा. वो मुझे जिंगल बहुत अच्छा लगता है ना. आई ऑलवेज कीप इट इन माय माइंड. ये दिल मांगे मोर, ये क्या हो गया? जो कर लिया, आगे बढ़ना है. सो व्हाट वी थॉट इज फूड इज द फ्यूचर. तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में ब्रेड, मतलब बेकरी बिजनेस में है. वी आर इनटू पोटैटो चिप्स में है, हमारा टिक्कीज में है, हमारा केचप में वी हैव एंटर्ड. वी आर इनटू चीज, वी आर इनटू बटर, वी आर इनटू मेयोनीज. सो अगर हमारे पास सब है तो हम, हमारा पिज़्ज़ा बेसिस हैं, पिज़्ज़ा चीज़ है हमारे पास में. Why can't we think of having a frozen portfolio? That's what was been thought. Last 3 years back, we put up a plant of frozen. This is our 3rd year. In fact, the 3rd year just started. And Ruchi, you will be very surprised that we have exhausted the capacity of that. So we have palak paneer, matar paneer, dal tadka, pav bhaji, and frozen snacks like samosas. And the good thing is, for the first time, we are exporting it to Israel, samosas to Israel. It's been made in Mogar. We have aloo vadas from Maharashtra. Is this even possible? Yes, and they had a very stringent norm. And but the plant that we have designed, indigenous plant that we have designed, the IQFs have been designed by us only, and world-class facility we have created for food. It's exhausted now, and we are expanding it. So the food is future. Organic food is future. Organic food, value-added organic food is a future. That is where we are working very hard. Indigenous sweet without sugar is future. How we can make it. Correct. Protein is future. Protein samosas are coming, protein parathas are coming, protein kebabs are coming, protein atta is coming, protein, already you know the protein chocolates, and then your protein shakes and protein lassi and protein milk and protein powder, and then value added protein powder with various flavors are coming. So that's the range that has been created. So one is protein, the second is sugar free, third is probiotic, the fourth is food, and food with all organic. That's the future we look at, and we start working on that. And the model, I always say that if McDonald's can come to India, if Domino's can come to India, Burger King can come to India, why not Amul Foodland go to all across the globe? And that's where we have now 5 to 6 of that in our region. Can we think of cloud kitchens? Can we think of having more Amul Foodland across India, then go outside? In next 3 to 4 years, we will be across the globe to make it happen that Amul Foodlands are all across the country. It makes me feel so proud. I'm already getting goosebumps. It will be such a moment. Yes. Amazing. That's my dream, and we are very happy that we've been able to do something. The frozen part has been taken care. Federation has started lifting a lot of products. We're getting good export orders from GCMF now. So that's a segment, and obviously the Indian sweet is a big market. Correct. So, but to see that it's from the health perspective. So can we think of nutraceutical? We are into protein. We are into you know, milk has got many things in it. Correct. Can we value add that with which can be a nutraceutical product? Can we think on those lines? Right. That's the future. Nutraceutical is going in a big so way. there is Plus so 50 much plus more. people Yeah. in India. Like for us, you need to have vitamin A, D, K. क्या नहीं चाहिए आपको? सब कुछ. So can we think of those lines? So that is where, and that again the backward integration that we can do. Can we think of biogas plants from the dung?
and then from filtration, after filtration to the CNG. We are now putting up a, just like in paints, you know, you have a white mass and you want to select a color, just select the color and the paint color would be, the white base will be as this color which you want to have it for your home. Right. I said we are developing a station, we already developed with 300,000 liters of slurry. You bring the soil to our laboratory right now, but we will have it now in the, just like a petrol pump, we have a gas station, we have a slurry station, and we have a soil testing station. So bring your soil, test it, and okay, this is what the bio NPK, whatever is there. So my person, he will, just like dispensing of petrol or natural gas, you will have dispensing of slurry, and then bio NPK, whatever is less will be added automatically into that, make the slurry that will use in the fertilizer. So that's what we are doing now. And then farmer would come to know that after some time this thing would be improved upon soil condition. Obviously the soil become fertile, you have more yield. If you have more yield, then it become organic. We will make value added of products from organic. तो आप दाल खाएंगे तो ऑर्गेनिक दाल तड़का, आप खाएंगे मटर पनीर, ऑर्गेनिक मटर पनीर. When we think of those lines, one day airlines talking about really, I mean, because सब कुछ तो आप यहाँ गुजरात में कर रहे हैं, बाकी पूरा देश जो है वो तो jealous हो जाएगा. नहीं, but we have been doing like fertilizer, organic fertilizer we have started in south now. This year we will be crossing 1,000 tons of organic fertilizer in south. Namakkal, we are tied with the IOCL and we are giving dung, collecting dung from that area, converting into fertilizer and giving it to the farmers over there. So we are doing it very intensively at the village level. So all these fertilizer is going to be the future, organic fertilizer is going to be the future. Can we think, we are discussing with the government, how can we blend, you know, the government has agreed to blend 5% of bio CNG in the CNG. That when that's happened, then again it's an advantage. But how can we blend organic fertilizer into fertilizer and still called as a fertilizer? If you see petrol, you add ethanol, you called as petrol. Correct. You add bio CNG in CNG, you called as CNG. So we say, why not organic fertilizer in fertilizer? Let it be fertilizer, but your import bills can come down over a period of time. Correct. Can we think on those lines to work upon that? Can we think of having more nutrients that we can generate to bring down the cost of adding nutrients into our products, which can bring down the cost of the entire cattle feed plant? Operations. So the food itself will have more nutrients so that we don't have to add alag se. So how can we have good fodder which has got more protein in it, so animal can become more healthy? How can we have more homeopathy medicine that can be given with less antibiotics and can be treated? We have now filed 21 patents. We have put up a homeopathy factory in our area, and it is growing in a big way. And IDF, you know that we have been awarded for that on that front. So these are the new thoughts, innovative practices if we can adopt. India is known for Ayurveda. Can we think of working on those lines and bring down the cost for the farmer? Right. But ultimately the water would be scared. It will be in the scarce. So need to work on rainwater harvesting at the village level. So in Amul, you must have seen whatever greenery what you see is in the rainwater harvesting. We are now working, we have put almost 1,200 solar systems at the village level cooperative societies. All our societies are now on solar. We have saved somewhere around 6 crore rupees worth of rupees, and huge tons and tons of CO2 been reduced. We are now working on how rainwater harvesting can be done at the village level to bring the table of water in the village up, so that the fodder can be grown, the crop can be grown, and farmer could be benefited. Wow. So in a nutshell, it is part of a circular economy. हाँ, एंड सर्कुलर इकोनॉमी से हमारे देश की आत्मनिर्भरता भी इम्प्रूव होती है. तो आपने तो ऑलरेडी बता दिया कि कैसे, मतलब आई थिंक अमूल डेयरी इज कंट्रीब्यूटिंग मैसिवली for the Atmanirbhar Bharat mission. Let me tell you one example, the recent development, though we have done along with NDDB, IDMC, indigenize, but India में, we are just talking for the first time that India में हमने cheese का अगर हमको plant लेना होता है तो there's only one supplier or two suppliers in the world. And if you want to make, just to have the figures, if you want to make a 30 tons plant of cheese, cheddar cheese in India, it would cost you 100 to 110 crore rupees. So we said that why can't we have our development? Correct. Absolutely. I'm very happy to share that Amul Dairy has installed its first plant in next on 12th of February. Tentatively, we will be operating the first indigenous cheddar 20 tons plant at the price of 20% of 100
120 crores. Oh my God. So it will be around 20-22 crore plant with 20 tons of capacity, expandable to 30, but maximum, not more than 30 crores, you can make the cheddar cheese at 30 tons per day. This is going to be the breakthrough in the country, and we have already installations going on, some trials have started. I'm very much optimistic that we will be able to do that of our own. That way we have developed many indigenous, like warehouse, we are the first one to develop indigenous warehouse. We were the first one to develop the IQF, because if you go for ice cream, I remember we got it from Europe, the IQF, and today we have our own 5 tons, India's biggest IQF is with us for ice cream, 5 tons per hour, which is again made indigenous, running successfully in Pune, running successfully in Khatraj. Right. So all have been done indigenously, again designed by us in-house, no external consultants. Okay. So is it open for other cooperatives also? Yes, I am of that opinion that whatever digitalization technology that we have done, cooperatives should adopt it. They should learn from us, or we are learning from them. If someone has done good, we should accept it. If we have done something good, they should accept it. And they should implement it. Again, I say that only success will come unless you don't implement, things will never happen. You just go on talking, nothing will happen. But you go in depth and start implementing. Then things will happen. Amazing. So I also hear that you have started putting a lot of plants outside Gujarat also, Yes. like you mentioned Pune. I believe we are starting one in Northeast. Yes. We have some In operation. Chittoor we have done recent Yes, development is Chittoor. The Pune plant is fully automated plant, Correct. most cost effective plant and most energy efficient. We had a board meeting last week there. Even they were very happy to see the plant. And the good thing is the capacity has been exhausted in first year only. So we are expanding it again. Oh In my Chittoor God. we have plant. We are putting up the biggest plant of curd in West Bengal. We are having we are putting up a plant in Assam. In Guwahati, government has given us land. So we are working a lot on that, and the expansions are going on. In Mugar also we are expanding. We recently expanded chocolate plant. So in all, in next 5 years, we are going to invest more than 3,000 crore worth of rupees, of which this year we will be target around 500 crores. Every year in next 4 to 5 years, we've been able to, before I superannuate, let us make it to more than 1 crore liter dairy. Oh, yes. We have to procure that much of milk, and we are very much optimistic with the kind of work on sorted sex semen or embryo transplant or digital belt. And this change with the sorted sex semen and embryo transplant will actually start showing only after 3 years, yeah, yes. So we have started getting, I told you we were at 18 to 20 lakhs today, yesterday. This morning the milk is around 58 to 59 lakhs per day. Right. In next 4 years it will be around almost, the peak would be around 90 to 100, means 1 crore liters per day. We are very much optimistic about it. Oh, absolutely, absolutely, sir. All our good wishes are with you. Thank you. And before I move on to my final segment, one question which I cannot hold myself asking you is that at 56 years of age, you exude remarkable energy and calmness. I mean, both energy and calmness. What is the secret to staying so young? Thank you for the compliment first, Ruchi, but I always believe, first thing is, you need to be clear by heart. So the reflection of your face or your body is what is you by heart, the first thing. Second, I don't board the train of thoughts. मैं विचारों की ट्रेन में नहीं बैठता. I'll just give an example कि आप स्टेशन आया, आप गाड़ी में बैठे हैं, एक थॉट आया, बोला मैं आऊँ क्या? तो आप बोलते हैं हाँ आना, अपन बातें करते हैं. तो यू टॉक टू योर थॉट. अगला स्टेशन आया, वहाँ एक थॉट और खड़ा था, बोलता मैं भी आ जाऊँ, बोला हाँ आ जाना, क्योंकि इस थॉट से डिस्कशन चल रहा है, दूसरे थॉट को भी ले लिया आपने, उससे डिस्कस करने लग गए. तीसरा आया स्टेशन, वो भी आ गया. शाम तक सिर आप बोल रहे सिर दुख रहा है मेरा, तो इतने सारे ये कैसे करूँगा, ये कैसे करूँगा, ये कैसे, उसने ये बोला, क्योंकि वो थॉट आपको बार बार प्रोवोक कर रहा है. सो बेस्ट थिंग इज दैट डोंट बोर्ड द ट्रेन ऑफ थॉट्स. दैट्स द मंत्रा. आया, निकालो. अब बोलो बहुत सिंपल है, तो आप तो बोल रहे हो निकाल कैसे रहे हो? निकालने के लिए बगैर अध्यात्म के नहीं होता है. विदाउट मेडिटेशन, विदाउट वॉकिंग, विदाउट एक्सरसाइज, विदाउट योगा आप उसको नहीं कर सकते साधना को. तो उसके लिए आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल, जिसमें आप मानते हो, स्पेंड सम टाइम, योर टाइम विथ योर सेल्फ. व्हेन यू आर सेइंग योर सेल्फ, गॉड इज देयर नेक्स्ट डोर टू यू, लुकिंग एट यू. जब उससे बात तो करो, अंदर से तो बात करो, बाहर से तो आपसे बात करें, अंदर से तो बात करो आप में से. सो व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ, यू रियलाइज कि आपको क्या करना है, कैसा करना है, कहाँ गलत हो. आप खुद बात करोगे ना, तब वो होगा. सो फर्स्ट थिंग, डोंट बोर्ड द ट्रेन ऑफ थॉट्स. सेकंड बहुत बड़ा मंत्र है, वो है लेट गो. ये हो गया, अरे जाने दो. अभी वो अरे मैंने बोला नहीं हुआ, अभी मुझे मेरे साहब ने बोला मैं तो ऐसा करना है,
मैं कहूँगा नहीं होगा, मैं बॉस हूँ, तो फिर आप नहीं कर सकते। आपको लगता है लेट गो करना है, चलो छोड़ दो, तो लेट गो कर दो। सेकंड, डोंट बोर्ड द फर्स्ट, डोंट बोर्ड द ट्रेन, लेट गो। और थर्ड थिंग इज ग्रेटिट्यूड। यू गो ऑन गिविंग, थैंकिंग गॉड फॉर वॉट एवर इट हैज़ गिवन। जो भी परिस्थितियाँ हैं उसको सौंप दो, आप संभालो, मैं नहीं जानता, इतना ही जानता हूँ मेरे को कैसे करना है। बाकी जब आप गॉड पे छोड़ दोगे, भगवान पे छोड़ दोगे, वो संभाल लेगा, तो आपको छोड़ देना चाहिए। तो एनर्जी आती है गुड डाइट। मतलब मैं गुड डाइट को ये बोलता हूँ कि गुड डाइट मीन्स कि आपको पता होना चाहिए आपको क्या खाना है। जैसे अपने ऋषि मुनि कहते थे, जो आप खाओगे जैसा आपका जैसा अन्न वैसा मन। तो वो तामसिक राजसिक वो जो है आपके, तो आप अच्छा सात्विक जीवन जीते हो तो सात्विक खाओ, तो आपका व्यक्तित्व है, तो फिर उसको वॉक करके पचाओ। कर्म से भागो नहीं। कर्म मतलब जो कर्म आपको दिया है, जो कार्य आपको दिया है, उसमें चैलेंजेस आएंगे, उसको एक्सेप्ट करो। क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं ये आ गया मैं क्या करूँ, इस पे डालो यार, मेरे को नहीं करना। नहीं, आप उसको एक्सेप्ट करो, आया है ठीक है, समझो और उसको सॉल्व करो। अगेन गोइंग टू द बेसिक, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। और थर्ड थिंग इज दैट स्पेंड टाइम विद फैमिली, स्पेंड टाइम विद लव वंस एंड स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ, एंजॉय दिस लाइफ एंड हैप्पीनेस। ये मंत्र सिंपल है, खुश रहो, आनंद में हो, हैप्पीनेस में हो। आनंद में रखा है भगवान ने आपको, आनंद में तो रखा है, आप आनंद में बैठे हो तो आनंद ही तो है। आप उसको एक्सेप्ट कर लो कि आप आनंद में हो, करेक्ट, तो ही आनंद आ जाएगा आपको। oh my तो ये चीज है। बाकी जीवन में मोह माया काम क्रोध मद मत्सर ये सब माया है। माया में मत पड़ो, मस्त रहो, काम करो, अच्छा करो, काम खाओ पियो और एंजॉय दिस लाइफ, एंजॉय दीज मोमेंट्स। स्पेयर टाइम विथ योर फैमिली, योर वाइफ, योर किड्स, योर फादर, योर मदर, and you will be happy. Things will automatically come your face. People will start following you. Simple लगता है, implement करने में tough है, but you should try it. मैंने बोला ना। बिल्कुल बिल्कुल। I am sure it's not that difficult once you decide that you have to do it, and it'll be fairly I'll just share a small story with you. I was at 26 years of age. और फेडरेशन में BM व्यास साहब थे, हम बनास डेयरी में थे, तो TQM प्रोग्राम शुरू हुआ था। तो TQM प्रोग्राम शुरू हुआ तो हमको भी लाया गया, तो वी वर देयर। तो मीटिंग होती थी, तो एक स्पीच BM व्यास साहब की थी। तो BM व्यास साहब, वी शुड हैव कमिटमेंट, वी शुड हैव दिस, बहुत बड़े। तो मैं पीछे बैठा बैठा सोचता था, सबने क्वेश्चन पूछे, किसी क्वेश्चन, क्योंकि अपना चेंज टर्न अराउंड कर रहे थे। तो मैंने खड़ा होकर पूछा कि सर ये कमिटमेंट का मतलब क्या है, व्हाट इज कमिटमेंट। तो BM व्यास साहब को मैंने पूछा था, तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था। मैंने कहा ये सब तो मेरे में है, तो मतलब अपन सही दिशा में है। देन केम अ फेज वेयर TQM प्रोग्राम आइशर कंसल्टेंट कर रहा था, तो हमको एक SGA रखा था, स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी में, और उसमें एक इतना बढ़िया एक्सरसाइज करवाई थी। उन्होंने बोला था कि आपको सबको लिखना है। तो बोला क्या लिखना है? बोला यू से दैट यू आर गोइंग टू सुपरएनुएट टुडे। मतलब आज आप 58 साल के हो गए और आज आप रिटायर हो रहे हो और आज आपका फेयरवेल है और आप 26 साल के हो अभी। तो आप ये लिखो, आप टेबल वहां बैठे हो कुर्सी पे और लोग आपके बारे में बोलेंगे, आप वो लिखो कि आप क्या सुनना चाहते हो। आप ये सोचो कि मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, वो लिखो। अब जब आप लिखोगे तो पता चलेगा मेरे बारे में अच्छा बोले तो मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, फिर ऐसा, तो ये सब लिखोगे तो पता चलेगा। दैट वाज आई ओपनर फॉर मी एंड दैट्स वेयर द टर्न अराउंड चेंज आया मेरे में कि नहीं, अगर मैं 60 साल की एज पर रिटायर होता हूं या 58 की एज पर रिटायर, जब भी रिटायरमेंट आएगा, तो मेरे बारे में लोग क्या कहना चाहेंगे वैसा कार्य मुझे करना पड़ेगा, वैसा मुझे बनना पड़ेगा जो लोगों को भी दिखाई दे। तो मैं उस जगह बैठा हूंगा तो मेरे बारे में बोल रहा हूँ तो मुझे एक्सेप्ट होगा कि हाँ मैंने ऐसा कुछ किया है, वरना लोग खाली बोल के आपको चले जाएंगे। सो दिस इज व्हाट द लर्निंग इज। सो द सेकेंड लर्निंग वॉज फ्रॉम TQM। द थर्ड लर्निंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग वॉज कि एक SGA था। तो SGA जितने भी SGA होते थे तो हम मेरा फ्रेंड था एक बिपिन पटेल, और मैं बिपिन पटेल जिस SGA में होते थे वो सक्सेस हो जाता था। तो कंसल्टेंट ने हम दोनों को अलग कर दिया। तो एक ग्रुप ऐसा बना जिसके अंदर मैं था, तो जो सिंगल SGA था वो भी सक्सेस हुआ और इट वाज अ गुड सक्सेसफुल SGA। तो हमेशा मैं लीडर रहता था उस SGA का। एंड देन इट वाज डिसाइडेड कि आयशा कंसल्टेंट बहुत होशियार थे, तो उन्होंने क्या किया कि बोला कि जो नया SGA बनेगा उसमें लीडर अमित व्यास नहीं होगा। अच्छा। और वो SGA कौन सा था? वो SGA था जो मेरा परम प्रिय सब्जेक्ट था, ब्रेक डाउन इन सेपरेटर्स। अच्छा। दैट वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट था। तो मैंने कहा ये तो अपने लिए अपना SGA बहुत बढ़िया करेंगे इसमें, पर मुझे लीडर नहीं बनाया। तो पूछा लीडर कौन थे? एक मेमन साहब करके थे, तो उनको लीडर बनाया। फैसिलिटेटर कौन? तो दूसरे को बना दिया। अब मैं हर टीम में लीडर था,
और मुझे बना दिया मेंबर। तो टीम भी लीडर भी नहीं बनाया, फैसिलिटेटर भी नहीं, मेंबर बना दिया। तो हमारे एसजीए की मीटिंग, तो अभी 26 साल में क्या होगा आदमी का दिमाग, जितना जैसा होगा करेंगे, लीडर करेगा। अपन ने तो सक्सेस किया हर बात को। तो लीडर ने ऐसे ही कहा, तो एसजीए की मीटिंग हुई, तो वो करवा, तो पहले 1-2 मीटिंग हुई, अपन बैठे रहे, मैं तो मेंबर हूँ, मैं क्यों बोलूँ, आप बोलो वैसा करूँगा। करेक्ट। मैंने कुछ नहीं किया। तो 2 रिव्यू हुए। रिव्यू में बथई साहब थे हमारे कंसल्टेंट, तो उन्होंने बोला कि अमित सक्सेस क्यों नहीं हो रहा। सर लीडर ये है, मैं तो खाली मेंबर हूँ। तो बोला यार इनिशिएटिव लो ना, मैं हाँ लूँगा ना। फिर मीटिंग हुई, फिर तीसरी मीटिंग, मैं कुछ बोलूँ ही नहीं, वो करे और गाड़ी चले ही नहीं आगे, जबकि सब्जेक्ट अपना। तो फाइनली 4 मीटिंग के बाद कंसल्टेंट वॉज वेरी अनॉयड। अमित आई गेव यू, उन्होंने मुझे एक डेजिग्नेशन दिया था, योर नेम इज चेंज एजेंट, ऐसा नाम दिया था उन्होंने। उसकी टी शर्ट दी थी। अमूल का मतलब उस समय बनास का चेंज एजेंट अमित व्यास, अमित व्यास चेंज एजेंट। तो मैं तो चेंज एजेंट बोला, अमित तेरे को मैंने चेंज एजेंट दी, फिर भी ये सक्सेस क्यों नहीं होता। मैंने कहा सर मैं लीडर थोड़ी हूँ, मैं तो मेंबर हूँ, उनको चलाओ, उनको चलाने दो। तो वो सब मीटिंग हुई, तो समझाया कि करना चाहिए। फिर मुझे साइड में ले गए, बोला अमित तू क्यों इनिशिएटिव नहीं लेता। मैंने कहा सर मुझे लीडर कहाँ बनाया आपने। तो बोलता है अमित if you want to grow, I am giving you one advice, if you want to grow, but you will never grow in life. I said क्यों? तो मैं तो जमीन हिल गई है। बोला you will never grow. बोला तुम लीडर बन के ही काम कर सकते हो, मेंबर बन के काम नहीं कर सकते। जीवन में आपको लीडर भी बनना आना चाहिए, मेंबर भी बनना चाहिए, फैसिलिटेटर भी बनना आना चाहिए। तीन सीखना है। मेंबर बन के तुम काम करोगे तो जीवन में सक्सेसफुल होगे। तो वो मेरे को हर्ट कर गया। और देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट. I end up writing a book on TPM, a zero breakdown in separators. I ensured that the leader remains the same, facilitator remains the same, but हमारे लीडर इतने अच्छे थे मेमन साहब, जब हमारा SGA नंबर 1 हुआ, that turn around the entire life of mine, because वो SGA फेडरेशन तक आया. उस SGA की मीटिंग के अंदर सारे MDs बैठे थे, फॉर्चुनेटली मेरे फादर भी बैठे थे. I presented there, and everybody liked. Nobody knew that I'm son of Dr. MC Vyas. And then the career changed. क्योंकि वहाँ मेमन साहब ने सबको बोला कि नहीं अमित ने किया है, एंड आई सेड नहीं इन्होंने करवाया, ये लीडर है. सो दैट थिंकिंग गॉट चेंज. ही कॉल्ड मी ऑन द स्टेज एट द टाइम ऑफ रिसीविंग, एंड देन आई कॉल्ड एंटायर टीम एंड वी सेड एज अ टीम वी वर्क. दैट वाज द लर्निंग एंड द लाइफ गॉट चेंज, बिकॉज वहाँ PR पटेल वाज सिटिंग एंड ही सेड ही इज अ राइट मैन. उनको ऐसा आदमी चाहिए था, उन्होंने बनास से उठा के सुमुल में ले गए मेरे को. सो समटाइम्स व्हेन यू चेंज एंड एक्सेप्ट द चेंज, आप उसको एक्सेप्ट करते हो, तो यू शुड नो दैट यू कैन नॉट बी लीडर एवरी टाइम. तो आपको ये भी चेंज आना चाहिए कि आपको लीडर नहीं बनना है, आप मेंबर बन के भी रहिए. सो व्हेन द किड ग्रोज, then you have to, up to some time you are there, then you have to come down, let him take the lead, you become the follower, then you become the member, their wife becomes the facilitator. So you have to accept these things in life. Wow, this is profound. I think ये तो समझना और उसको जीवन में उतारना, it's going to be. अहंकार नहीं होना चाहिए इंसान में. चलिए सर, तो अब हम अपने इस सेगमेंट पे आते हैं जो कि एक रैपिड फायर सेगमेंट है. ज़्यादा सोचना नहीं है, जो मन में आए बता दीजिएगा. ये सरप्राइज है. ओके, सिंपल से शुरू करते हैं. हाँ जी. टी और कॉफ़ी? टी. मॉर्निंग रूटीन, साइलेंस और न्यूज़? साइलेंस. ऑटोमेशन और पीपल, व्हाट कम्स फर्स्ट? पीपल. Let me tell you on that note, your people are very fond of you. I've spoken to so many people. I think this is the success that, thank you. That the actual success of. जो आपके पीछे सुन रहे हो वो ही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. आप भले कितनी बातें कर लो, let people talk about you. That is also a learning, that you cannot talk about yourself every time. Correct. Let people talk about you. Correct. Absolutely. One leadership habit that you swear by? Honesty. One book every leader must read? I would love to write a book. And I'll read it. Yeah, the 7 Habits of Highly Effective People is the one which I really loved, and I read it and then I tried to implement that. It's an excellent book, excellent book. A word your colleagues would use to describe you? It's very difficult to walk with him. That's not true. I've heard something better. कई बार मुझे बोलता है कि very I should not use that word, but very hard, hard taskmaster. People talk that very hard taskmaster.
Okay, yeah, according to you, but I'll tell you what I've heard. They say that you really care. Okay, oh, I never knew that. Yeah. Your biggest stress buster? Watching adventures movie. Acha. I watch every day, one night, one movie. Netflix पे कोई बाकी नहीं है मूवी. What are you saying? नेटफ्लिक्स पे कोई एडवेंचर एक्शन एडवेंचर बाकी नहीं है. तो मेरी वाइफ मुझे बोलती है कि तुम इतना देरी में एडवेंचर करके आते हो, एक्शन एडवेंचर करके, और देन यू प्रिफर टू लुक एट दैट मूवी. एवरी डे आई वॉच वन मूवी और कोई बाकी नहीं है उसकी. तो मैं बोलता हूँ कि मेरे वो गोलियां खत्म हो जाती है ना, तो मैं वहां से चार्ज कर लेता हूँ. Wow. One thing that still excites you about coming to work every day? To work for the people, the farmers, that gives me that, and for the cows, you know, they are waiting that they don't get sick. Farmers are happy, their livelihood is happy, their children are happy, their families are happy. That motivates me, that how can I do more so that they can get more money. Amazing, amazing. Milk cooperative or corporate FMCG, which is tougher to run? Let me be very honest, both are difficult to run. All have their pluses, all have their minuses. You cannot say that this is tougher, this is easier. Both are tougher. Both have their pluses, both have their minuses. I never compare that. Whosoever working there knows better. Everyone would say, you know, the other side is always green, but Right. it is not. Right. Both are equally, or I would say anywhere you go, anywhere you have to accept it. Everyone has got challenge. Amazing. One piece of advice you wish someone had given you at 25? Yes. It's a short story. Again, after completing IRMA, I never wanted to have a blue collar job. I wanted to have white collar job. मतलब इंजीनियर नहीं रहना था मुझे. तो I decided I would quit Banas Dairy. अच्छा. And मैंने छोड़ने का decide कर लिया. तो my father said that, see, it's better to be in dairy. I said, मुझे क्या है? I was getting a job of a deputy manager in those days, procurement in modern Terrytowel. अच्छा. तो मेरे फादर को मैंने बोला, तो मेरे फादर gave me an advice, a very good advice. See Amit, you can go, I don't know. उस समय 25,000 सैलरी और इधर मेरी 8,000, 7,000 सैलरी. Oh. तो मैंने बोला कि मैं पैसे भी भर दूंगा इरमा के डेयरी के जो भरने आए से. So he said that Amit, what is your core competence? I said engineer. बोला I am a veterinarian. But मैं ये मानता हूँ कि you should never leave your core competency. Correct. You should be with your core competency and then work. Rest of is management. Correct. If you will go to procurement, you will become head of vice president of some organization only on commercial, but you will never become managing director. So my father advice came true. I didn't go, and I worked at Banas. The plant was coming, life changed. So the one advice from father changed everything. My God, amazing, amazing, sir. This is. It's like कि मैं आपसे बात करते ही जाऊँ, मेरा तो मन ही नहीं भर रहा है. But you have already promised me that we'll have another session, so I'm still satisfied. Certainly. But it was such a profound chat that I had with you, and of course, each segment, each question, there is so much to take away that I really cannot say that this one was more important. But I think 3 things that really I want to take away today. One is process, the other is about sincerity, and the third is about spirituality. The rest all I think will come together with these things. So it's been really wonderful to chat with you. It has been an honor and extreme privilege कि आपने मुझे समय दिया और मुझसे बात करने के लिए अपना समय निकाला. Thank you so much, and I really wish you good luck. Wishing Amul Dairy lots of good luck. Thank and you. I really want कि 1 CR procurement जल्दी से हो जाए. Thank you very much. Thank Thank you you, so Ruchi. much, Thank sir. you. Thank Thank you. you having you here. Thank you. Thank you so